Hello everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, as you're used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today's session is quite wonderful as it is on an exchange program, Global U Grade, which is one of the prestigious opportunity for bachelor's students. And today we have Ms. Sana Ahsan. Welcome, ma'am. She is an alumni of U Grade, had in fall 2023, and currently pursuing bachelor's in English studies from NAMAL. So, without wasting further more time, let's directly dive into today's session. It's over to you, Ms. Sana. Okay, thank you so much, Karan. Thank you so much for introducing me. Um, Hi, this is Sanai San, currently doing my bachelor's from National University of Modern Languages in English Studies, and I'm also UGrad alumna for 2023. I was placed in Emporia State University, which is in Kansas. Currently, I'm working with different organizations, including CCE, which works on different programs that help students to build their leadership skills. And currently, I'm working on a project which is Pelican Fellowship. So that's all about me. And I would like to congratulate and thanks this society, this organization, because it's been so long that they are working to help students from different parts of the world in different activities. So thank you so much for inviting me. I'm grateful to be part of this webinar. Let's talk about this specific scholarship, which is Global UGrad program. I'm gonna share my slides, and at the start, I will talk about a few things that are crucial to be part of this program. I will talk about intro, eligibility criteria, important factors that play a role in your selection, and then we will be having question answer session. Meanwhile, I just want you to keep your questions to you, and you can ask those questions in chat box, and then even you can raise hand and ask question. But I just want कि जितना सेशन का टाइम है उसमें पहले जो है वो मैं बोल लूं, ताकि आप लोगों के जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो उसमें ही क्लियर हो जाएंगे. अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन बचता है तो वो विल टेक दोस क्वेश्चन इन चैट बॉक्स और यू कैन कम. So yeah, let me share my slides. There we are. Okay. Can you see my slides? Yeah, slides are visible. Oh, okay, that's so. Let's first talk about Global UGrad program. It's for undergrad students, and it's sponsored by U.S. Embassy, U.S. Department of State, and one of the prestigious institute, which is IREX. So that's very important to know that who funds this program. So it is funded by IREX. It's an organization that works under U.S. Department of State. It's for those students who are in their second year of their degree and they study their third year or like fifth semester or sixth semester or seventh semester in the US. So it depends on the time they have applied. So it varies. तो it's a kind of नॉन एकेडमिक डिग्री जिसमें आप सिर्फ एक सेमेस्टर अपना जो है वो यूएस में पढ़ते हो. आपकी स्पेसिफिक कोई डिग्री काउंट नहीं होती, बट यू गेट अ सर्टिफिकेट और अपना कंप्लीशन का ट्रांसक्रिप्ट, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट डिग्री. आप जो ऑलरेडी अपनी डिग्री कर रहे हो, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दैट. एंड आई थिंक देयर इज someone who is trying to write on my slides. So I just request you not to do that because I just don't need any kind of drawing on my slides. Yeah, let's move forward to another slide. Eligibility criteria. It's very important to know about eligibility criteria. इससे पहले कि आप लोग हंटिंग करें, यूट्यूब वीडियोस देखें, एप्लीकेशन फॉर्म देखें और बाद में आप डिसअपॉइंट हो ये देख के कि यू आर नॉट एलिजिबल और ऐसा हो कि आप बिल्कुल छोड़ दें कि भाई हमारा इससे क्या काम और आप एलिजिबल हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आप कभी भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू ग्रेड, आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये होता है कि सबसे पहले जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लें. जो नेक्स्ट हंटिंग है वो आप उसके बाद स्टार्ट करें.
आप जो है इसका फर्स्ट यही है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए, आपकी डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। आप डुअल नेशनल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सऊदी की नेशनैलिटी है, आपके पास यूएस की नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपने सेकेंड पॉइंट पे, आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होने चाहिए। इसमें यह है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि वो एपीडी एडीपी समथिंग इस तरह के कोई 2 ईयर प्रोग्राम होते हैं वो करे होते हैं, या कोई सीए वगैरह करे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एलिजिबल नहीं है। आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होने चाहिए और आपकी डिग्री जो है वो 4 ईयर होनी चाहिए या फिर वो 5 ईयर होनी चाहिए। तो देन यू आर एलिजिबल। जो 5 ईयर डिग्री है, फॉर एग्जांपल लॉ, एमबीबीएस, डी फार्मेसी, दो स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल, बट अगेन इन देयर सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री। मैंने इस पॉइंट को इसीलिए हाईलाइट भी किया है क्योंकि यूएससीएफपी की ये न्यू पॉलिसी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी ओनली those who are eligible are there in 14th year of their education, like for example in their third or fourth semester of their degree. उससे पहले ये था कि इवन जब मैंने अप्लाई किया था तो 5th सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल थे, 6th सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल थे, बट फ्रॉम दिस टाइम ओनली थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर और योर सेकेंड ईयर ऑफ योर डिग्री और 14th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये किया था कि वो 4th ईयर में है एमबीबीएस के, तो वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं, तो ये 14th ईयर ऑफ एजुकेशन बनती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। 14th ईयर ऑफ जो एजुकेशन होती है, आपने ये देखना है कि भाई मैं 14th ईयर ऑफ एजुकेशन में हूँ या नहीं हूँ। इवन अगर आपने बीच में कोई और कोर्स किया है, आपने कोई ब्रेक लिया है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेट्स सपोज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले 2 साल की कोई डिग्री की होती है इंटरमीडिएट के बाद, और उसके बाद वो 4 ईयर वाली डिग्री में एनरोल होते हैं, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसमें है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इम्पोर्टेंट उसमें एक चीज होती है, वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं देती, टाइमली नहीं देती, उनकी 1 महीने के बाद वो दे रही होती है, या फिर कुछ स्टूडेंट खुद भी नेग्लिजेंस दिखाते हैं कि वो लेट अप्लाई करते हैं, और फिर बाद में जो है वो उनको वो करना पड़ता है, मतलब मिन्नतें करनी पड़ती यूनिवर्सिटी की कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट दे दे। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं आया होता। अब फॉर एग्जांपल यू आर इन योर फोर्थ सेमेस्टर एंड यू नीड ट्रांसक्रिप्ट, और आपके थर्ड सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो फॉर दोज रीजंस आई जस्ट कैन रिकमेंड वन थिंग कि आप जाएं अपने एचओडी से बात करें, डायरेक्टर एकेडमिक्स से बात करें कि भाई आपका ये मसला हल करें, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उसमें लास्ट एक अल्टरनेटिव ये ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने जो रिजल्ट कार्ड्स वगैरह हैं के ऊपर यूनिवर्सिटी की कोई स्टैंप वगैरह लगवा के सबमिट कर दें, बट दैट शुड बी इन फॉर वर्स्ट सिनेरियो। उससे पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट ही लें जो कि यूनिवर्सिटी देती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर अदर पॉइंट्स कि आप डुअल नेशनलिटी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली में कोई क्लोज मेंबर जो है वो यूएस की नेशनलिटी ना हो, उसके पास आपकी फैमिली में से कोई मेंबर आप जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएससीएफपी, आईरेक्स इस तरह के किसी डिपार्टमेंट में काम ना कर रहा हो, और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में है तो भी यू आर नॉट एलिजिबल। एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपने जस्ट यूएससीएफपी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आपने उसको स्टार्ट कर देना है फिल करना। देयर इज वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू चेक दैट। जब आप अप्लाई करना, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करो, तो उससे पहले जो है वो इस प्रोग्राम के बारे में एक अच्छी खासी डिटेल पड़ी हुई है यूएससीएफपी की वेबसाइट पे, तो आप उस डिटेल को जरूर पढ़ें, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट डिटेल जो कि आपको जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि अच्छा, मतलब मैंने किस तरह से उनकी नीड्स को के साथ, या जो वो करवाते हैं या जो उनका पर्पस है, किस तरह से मेरा पर्पस या मेरी नीड्स या मेरे गोल्स उसके साथ अलाइन करते हैं, तो मैं उसको उस हिसाब से फिल करूँ। और काफी सारे क्वेश्चन तो आपके वहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रीजनल, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अलोंग विद दैट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, और रिकमेंडेशन लेटर्स वो नहीं जो कि
आपको इस प्रोग्राम के लिए करें। समटाइम्स आपको इस तरह के अप्रिसिएशन लेटर्स मिले होते हैं, कहीं आपने पार्टिसिपेट किया है उसका आपको होता है, या कोई आपने एक्टिविटी कहीं पे करवाई होती है तो उनकी तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिलता है। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो वो आप अटैच कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके अटेस्टेड ऑफ कोर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिलते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, आपकी मैट्रिक की डिग्री, अगर ओ लेवल के हो, ए लेवल के, तो वो वाले आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपने अटैच करने हैं। अ, अब ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, मैंने यहाँ पे यूएससीएफपी की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक। बाकी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी डिटेल्स है, बट डिटेल्स फिल करने से पहले उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो जस्ट गो टू दोस इंस्ट्रक्शंस, उनको चेक करें, उनके अकॉर्डिंगली आप फिल करें। बट अगेन इफ यू आर नॉट क्लियर तो आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी है, बहुत ज्यादा alumni ने बना के भेजी हुई है किस तरह फॉर्म फिल करें, तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े। अपना नेम जो है वो आपका लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है, आपके पासपोर्ट पे है, या इवन आपके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट दोनों ही नहीं है तो यू कैन गो एंड चेक योर बे फॉर्म। उस पे आपका जो नेम है उसके जो स्पेलिंग है आपने वही यूज करने हैं, क्योंकि ये चीजें बाद में चेंज नहीं होती। कंप्लीट अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह उसमें ऐड करें। उसमें एक लैंडलाइन का नंबर आपने ऐड करना होता है, बट इफ यू डोंट हैव लैंडलाइन नंबर तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप वो जितने डिजिट्स होते हैं लैंडलाइन के नंबर के, आप उसकी जगह उतने जीरो ऐड कर दें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंडलाइन का नंबर नहीं होता, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई भी जगह आपने खाली नहीं छोड़नी है, उसकी जगह आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, एन लिख दें, तो दैट्स वेरी फाइन। Now comes to the most important part, which is personal statement. पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने दिमाग में रखना होता है। I'll discuss it at the end. Okay, before writing. Yes, यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने एक आपको बताना चाह रही हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट से पहले जो है ना आपके पास एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का पार्ट। उसमें एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करें, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के आपको कोई भी लेटर्स वगैरह मिले वो अटैच करें। वन थिंग यू कैन डू कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट यू हैव प्रूफ इन टर्म्स ऑफ फोटोज, तो आप वो फोटो अटैच कर सकते हैं। लेकिन उसको आप लास्ट में अटैच करें, स्टार्ट में बिल्कुल भी अटैच मत करें। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मेरा ये सीन था कि मेरी न्यूज़पेपर पे एक फोटो थी जिसके ऊपर नीचे लिखा हुआ था कि मैंने इस एक्टिविटी में इस तरह पार्टिसिपेट किया है। अब मेरे पास उसका कोई और प्रूफ तो नहीं था, तो आई जस्ट यूज दैट फोटो, वो मैंने वहां से उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने वो अटैच कर दी। इसी तरह से आपको कहीं भी कोई मेडल मिल रहा है, कोई कोई भी ऐसी चीज मिल रही है, मतलब कोई भी अप्रिसिएशन वाली कोई भी चीज, कोई भी ऐसा प्रूफ जो बताए उनको कि दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, तो यू कैन यूज दैट। चलो जी, अब हम चलते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है इवन क्वेश्चंस के फॉर्म में कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में इस चीज को कवर करें। सबसे पहले आपके आते हैं एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स। उन्हें उससे पहले आपके आते हैं इंटरेस्ट। उसमें आपने अपनी सिंपल पर्सनालिटी के बारे में बताना होता है कि अच्छा, उसमें डोंट मेंशन योर नेम, डोंट मेंशन नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई भी चीज, या आप किस एरिया से हैं। कुछ लोगों ने ना ये बहुत लिखा होता है बैकवर्ड एरिया, अंडर प्रिविलेज एरिया, तो जस्ट डोंट मेंशन दैट, क्योंकि आपने जब अपना एड्रेस डाला था वहीं पे आपने बता दिया था कि दैट यू बिलोंग टू दैट एरिया, उन्हें पता लग गया कि आपका एरिया अंडर प्रिविलेज है या कैसा है, तो यू डोंट नीड टू मेंशन दीज थिंग्स। वो थोड़ा रेपुटेशन हो जाती है। और दूसरा है कि अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स में। एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये बताना होता है कि जो करंटली आप मेजर पढ़ रहे हो, या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, वो क्यों पढ़ रहे हो। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई वाज नॉट क्लियर अबाउट माय एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जब आप एसओपी लिख रहे होते हो तो उसमें आपने कहीं ना कहीं से उसको अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन जरूर करना है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर गोल्स में ये होता है कि आपने ये बताना है कि हाउ योर करंट मेजर अलाइन विद योर फ्यूचर गोल, या आप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे होते हो, आप उसका बताओ कि भाई ये जो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है किस तरह से मेरा फ्यूचर गोल के साथ अलाइन कर दे, या फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूँ। इट शुड बी वेरी क्लियर। आपका पास्ट
आपका करंट, आपका जो प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर, ये चीजें बहुत अलाइन करनी चाहिए, एक सेम पेस में होनी चाहिए। पता लगे कि बंदा जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड है अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में। उसके बाद ये है, उसमें आप लाइक आप ना मल्टीपल ऑप्शंस मत दो कि भाई मैं ये बनाऊंगा या वो बन जाऊंगा इस तरह से, या मेरा ये करने का या वो करने का दिल है। उसमें आप बहुत क्लियरली बताओ कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू बी इन फ्यूचर। उसके बाद वाई दिस स्कॉलरशिप, तो उसमें आपने बताना है कि वाई यू ग्रेड, स्पेसिफिकली हाउ यू ग्रेड कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल। उसमें आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक वो बहुत ज्यादा चीज मेंशन करते हैं दैट मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, आई विल बी एबल टू मीट न्यू पीपल, स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स वेरी जनरल। आई अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी एसओपी थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव हो, तो ट्राई टू रिलेट दैट व्हाई विद योर गोल्स। कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो उसमें ये था कि मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बताया था कि एडवांस टीचिंग के जो राइटिंग टूल्स हैं, जो कि ऑफकोर्स पाकिस्तान में नहीं है, तो वो मुझे वहां पे मिल जाएंगे। तो और मेरा ये था कि मेरा थोड़ा राइटिंग वाला बैकग्राउंड भी था, तो उससे क्लियर पता चल रहा था कि मुझे किस तरह से मेरे राइटिंग प्रैक्टिसेस में, मेरे इंटरेस्ट में यूएस या यू ग्रेड स्कॉलरशिप हेल्पफुल है। और मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो जिस जो जहाँ की लैंग्वेज है वो वहां से ज्यादा बेहतर तो मैं कहीं पे नहीं पढ़ सकती। तो दैट वाज आल्सो वन थिंग। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह की, इफ आई टॉक अबाउट अनदर कोलीग, उनका था, वो लॉ के स्टूडेंट थे, एंड उन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ था कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है बट इफेक्टिव है, तो हाउ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट स्टडी, वो उसको हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐसा जो आपके गोल में है, आपकी डिग्री में है, और यूएस में वो चीज उस तरह से है कि वो आपको हेल्प करेगी अचीव करने में, उसको बेहतर बनाने में। तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। उसके बाद आ जाते हैं वन मोर थिंग, फ्यूचर प्लान। अच्छा, फ्यूचर प्लान में आपका जो फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर प्लान में जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूचर प्लान में आपने बताना है कि ऑन माई रिटर्न आई विल डू दिस फॉर माई कम्युनिटी। आप किसी तरह से भी जो है वो उसको अपनी कम्युनिटी से जरूर रिलेट करें कि भाई मैं जो ये चीज अचीव करूंगा, वापस आके मैं किस तरह से उस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी सोसाइटी में। आप अगर सिंपल ये लिख दोगे कि I will implement these learnings, inculcate these learnings in my teaching, or anything. तो it's also good, it will work for you। लेकिन अगर आप उसको बेहतर तरीके से रिलेट, जितना बेहतर तरीके से आप रिलेट करेंगे, उतना ज्यादा वो आपकी एप्लीकेशन में हेल्पफुल होगा। तो ये लास्ट में आपने ना, लास्ट में ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस तरह से लिखा होता है कि आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस, मतलब लाइक कंक्लूडिंग उनकी जो लाइन होती है ना, वो इस तरह से होता है कि मैं कितना एंथुजियास्टिक हूँ या कितना मोटिवेटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप ये बताओ कि वापस आके आप क्या करोगे अपने उस कंट्री के लिए। उसमें आपने यूएस के लिए कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने, सुपर पावर, फर्स्ट वर्ड और इस तरह के वर्ड्स ना। आप यू डोंट रियली डोंट नीड टू। आप सिंपल उनके अगर एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेंगे कि अच्छा जी उनके बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इस तरह का कोई वर्ड कर लेंगे तो दैट्स फाइन। लेकिन आप बहुत ज्यादा वो फ्लैटरिंग टोन नहीं होनी चाहिए आपकी कि आपको होगा भाई यूएस में सब कुछ है। यूएस वाकई भी में भी सब कुछ नहीं है, और यू डोंट नीड टू मेंशन कि वो सब कुछ है। और पाकिस्तान के बारे में जस्ट डोंट मेंशन एनी सिंगल वर्ड अबाउट पाकिस्तान, अबाउट योर एरिया, अबाउट योर फैमिली। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के बारे में बताया होता है कि मिडिल क्लास फैमिली, बैकवर्ड फैमिली, दे क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स फॉर मी, इस तरह की चीजें। तो जस्ट डोंट डू दैट जस्ट टू गेन अटेंशन, इवन इफ इट्स ट्रू। अगर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं भी किया हुआ, तो इवन इफ इट्स ट्रू, स्टिल जस्ट डोंट डू दैट। आप कोई भी नेगेटिव वर्ड अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री और अपनी फैमिली के लिए यूज ना करें। इनफैक्ट आप उनकी सपोर्ट, जो उन्होंने आपको सपोर्ट किया है जिन फेयर्स में, आप उसको हाईलाइट करें जितना अच्छे से हो सके। आप पेसिमिस्टिक टोन यूज ना करें, आप ऑप्टिमिस्टिक टोन यूज करें इन योर एसओपी। लास्ट पे यही है कि आप जाके जो है, आपको यूग्रेड क्या देता है, तो आई जस्ट मेंशन अ फ्यू थिंग्स। आपका राउंड ट्रिप, आपका वहाँ का स्टाइपेंड, आपकी वहाँ की फीस, हाउसिंग, मील्स, आपको इनफ स्टाइपेंड मिलता है बुक्स के लिए भी और खर्चे के लिए भी, जो कि आपको वहां पे जरूरत ना पड़े। वहां पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, जो कि आपके एक्सीडेंट और सिकनेस इस तरह की चीजों को कवर कर देती है। तो इन शॉर्ट इट्स लाइक 101% फुली फंडेड ट्रिप, जिसमें आपको ना पैसे ले जाने की जरूरत है, ना आपके कोई पैसे लगते हैं। तो दैट्स दैट्स अबाउट पर्क्स।
लास्ट में मैंने जो है वो कुछ अपनी ईमेल आईडी मेंशन किया है। कुछ लोगों को एसओपी रिव्यू करवानी होती है, यू कैन सेंड मी योर एसओपी, यू कैन ईमेल मी योर एसओपी। उसमें सिर्फ आप अपना नेम मेंशन कर दें दैट आई एम दिस, और इस यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेरी जी, और अपने मेजर के बारे में भी बता दें तो इट विल बी हेल्पफुल कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, ये मेरा मेजर है, ये मेरा नाम है, तो आप मेरी एसओपी रिव्यू कर दें तो मैं ऑफकोर्स कर दूंगी। लेकिन ये नहीं है कि एप्लीकेशन की डेडलाइन 12 बजे है तो आप मुझे 11 बजे एसओपी भेज रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं उसको रिव्यू भी कर दूं। तो इट्स नॉट गोना लाइक दैट। आप मुझे कम से कम हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले जरूर भेजें। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको ईमेल समटाइम्स ये होता है कि ईमेल में एरर आ रहा होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं फोटो के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दैट वर्क्स फॉर यू, कि हमें हमारी एसओपी रिव्यू कर दे। So that's all from my side. अगर कोई questions है तो we can go for that. Okay, so we got a question. I guess CGPA. I should have mentioned about CGPA earlier. I thought so. अच्छा, CGPA का ये होता है कि if I talk about my CGPA, so my CGPA was 3.7 at the time of application. और मेरे जो बैच में स्टूडेंट्स थे तो उसमें of course there were so many students who were having 4 CGPA. There were a few with 3.5 and less than that, but I couldn't find anyone who was having less than 3. तो लेकिन ये है कि if I talk about eligibility criteria, so you are eligible if you have CGPA above 2.0. तो अगर आपकी 2 पॉइंट प्लस है, 2 है, तो यू शुड अप्लाई। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट सीजीपीए। लेकिन ये होता है कि इफ आई टॉक अबाउट देयर प्रेफरेंस, द व्हाट आई हैव सीन सो फार, तो उसमें ये है कि उन्होंने 3+ सीजीपीए वालों को या फिर जिनकी अच्छी जीपीए है उनको सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपने की है या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा हुआ जो उनको लगा कि भाई हम इसकी सीजीपीए को कॉम्प्रोमाइज कर लें यहाँ पे, तो दे विल कंसिडर। क्योंकि हमसे पिछले कुछ बैच ऐसे थे जिसमें 2 वाली लाइन में से भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो जस्ट डोंट थिंक कि अगर आपकी 2 से कम है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, या सॉरी 2 से 3 से कम है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको अप्लाई तो हर सूरत में ही करना चाहिए। सीजीपीए ओके जी, गुड सीजीपीए तो आपकी फिर जितनी अच्छी है आप उतनी ही कर लें। मैम फॉर्म फिर कैसे आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन के एसओपी लिखने के बाद फॉर्म का, क्योंकि फॉर्म में ही आपने उसको इंक्लूड करना होता है और उसके बाद आप बस उसको सबमिट कर देते हो। आई डोंट, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप अगर दोबारा पूछ ले तो। मैं तब भी जो है वो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ रही थी और अभी भी मैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ही हूँ। Ahmad Ali, you have question, you have raised hand as well. So yes, you can ask your question. अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा एसओपी और इन सब चीज़ों से साइड है। दरअसल अभी करंटली मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है इसी वीक से, और मैंने जो अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट किया है उसमें मैं एक एग्जाम में एब्सेंट था, और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट आने में एक मिनिमम 3 महीने लग जाएंगे, और तब तक एप्लीकेशन वगैरह जो है फॉर्म तो वो सबमिट होना बंद हो जाएंगे 25 सितंबर के बाद। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिलेक्शन हो भी जाती है तो क्या बाद में वो मुझसे 3rd सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मांगेंगे? Yes. Okay. जी अहमद, actually I was not on mute, so I couldn't answer you. अगर आपका यही, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी का, तो वो यही है कि यू आर सपोज टू बी इन योर 3rd और 4th सेमेस्टर। अगर आपके 4th सेमेस्टर का में रिजल्ट नहीं आया, अगर आप 5th सेमेस्टर में हो गए हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल इन एनी एनी केस। बट ये है कि उसमें फिर आप इस तरह कर सकते हो कि आई जस्ट डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू ऑन माई ओन। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यूएससीएफपी को ईमेल कर सकते हैं। हेलो, आई एम सो सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू गाइज अगेन एंड अगेन। तो मेरा माइक बार बार बंद हो जाता है। तो अगेन यही चीज़ है कि अगर आप कोई भी इशू है रहा है तो इट्स ओनली 3rd एंड 4th सेमेस्टर, बट फॉर योर अश्योरेंस आप यूएससीएफपी को ईमेल कर लें। यस फाइजा, आई कैन सी योर हैंड। How to apply for the scholarship, Hasnan? How to apply? आप यूएससीएफपी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है एंड यू कैन अप्लाई अबाउट दोस्त हु जस्ट कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। दीवान, इट्स अगर आप इट्स गुड कि अगर आप इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट हैं और यू वांट टू अप्लाई, तो अभी आप वेट करें अपना
एडमिशन ले किसी यूनिवर्सिटी में, मेक योर प्रोफाइल फॉर 1 ईयर और उसके बाद आप अप्लाई कर ले। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 2, ओनली 2 GPA अगर आप किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस, वालेकुम अस्सलाम फाइजा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मतलब किसी के फादर या मदर को कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कोई नहीं है, तो क्या उनके लिए भी है ये भी, मतलब बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है किसी का? क्योंकि किसी किसी के फादर या मदर को कोई भी जॉब नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब, तो उनको जल्दी से कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती, किसी स्टूडेंट्स को। तो यही क्वेश्चन है मेरा। ओके फायजा, आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। बैकग्राउंड में ये होता है कि यूग्रेड का ना कुछ कोटा होता है, जिसमें पंजाब का कुछ कोटा है, बलूचिस्तान का कुछ कोटा है, हर एरिया से उन्होंने स्टूडेंट्स जरूर लेने होते हैं। फिर उसमें कुछ माइनॉरिटीज का कोटा होता है, लाइक हिंदू कम्युनिटीज से, क्रिश्चियन कम्युनिटीज से उन्होंने स्टूडेंट्स लेने होते हैं। फिर उसमें फीमेल और मेल का कोटा होता है। इस तरह से उन्होंने डिविजन्स की होती हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट बैकग्राउंड, तो उसमें आई हैव सीन कि वो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज। आई एम सो सॉरी इफ आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, आई जस्ट वांट टू क्लियर माय पॉइंट। इस तरह के एरिया से, जो गांव से इस तरह के बच्चे होते हैं, इनको वो प्रेफर करते हैं। बट बट हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनकी बैकग्राउंड रूट्स से जो पढ़े हुए थे, बीकन से पढ़े हुए थे, फिलहाल वो IBA में हैं, लम्स में हैं, जिक्की में हैं, हबीब में हैं, लाइक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर हमारा 54 का अगर बैच था तो उसमें एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। बाकी जो थे वो नॉर्मल बैकग्राउंड्स के भी थे। तो आई थिंक आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बेस पे आपको कोई प्रेफरेंस मिलती है या नहीं मिलती। हाँ, उसमें एप्लीकेशन में जरूर लिखा होता है कि अगर आप फीमेल या अंडर प्रिविलेज एरिया से हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। दे आर हाईली एनकरेज टू अप्लाई। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मुझे लगता है कि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि काबिल होते हैं। डजेंट मैटर कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था। सो यस, आई हैव जॉइन नाउ फॉर द रिवल गर्मी। ओके, वे फिकर साल में। मैम Someone shared. Yes, Muhammad Ali. I can see one question, ma'am. I saw someone sharing his her background emotional appeal in SOP, but you opposed it. So can you please reflect? देखिए, आप अपनी SOP का बेस्ट टिप ये है कि आप अपना ना लिखें, अपनी SOP खुद लिखें, आप उसको पढ़ें। वो पढ़ने के बाद आप देखिए कि आपको वो कितनी अपीलिंग लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी एसओपी पढ़ने के बाद आपको किसी को, अगर वो आप उसकी जगह पे होते तो आपको वो सिलेक्ट करता? या फिर देखिए, वहां पे जो लोग होते हैं ना, हो सकता है उसकी इमोशनल अपील जो है वो थोड़ा सा इतनी अच्छी हो, इतनी इफेक्टिव हो, उसने इस तरह से काउंटर उसको किया हो कि वो सिलेक्ट हो गया हो। लेकिन आपको पता होता है कि आप किस तरह की इमोशनल अपील यूज कर रहे हो, या आपका बैकग्राउंड वाकई ही कैसा था। वहां पे मेरा जो पैनल था, देवर 5 पीपल, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। वो आपको जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले वो आपकी छानबीन कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि, और अगर इंटरव्यू में वो आपसे इतने ज्यादा काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि जिसमें उनको पता लग जाता है इफ यू आर लाइंग और नॉट। तो आप वहां पे सिर्फ उतना ही बोलें जितने आप हैं SOP में। ठीक है, अगेन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप फिर उस चीज को उतना डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई मैं वाकई ही बहुत रोने धोने से सिलेक्शंस नहीं होगी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और ये मुझे उस बंदे ने बोला था जिसने मेरी SOP रिव्यू की थी, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन में इस तरह के वर्ड्स लिखे थे। तो उसने मुझे पहले ही बोला था कि मुझे देख के भी मुझे तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ के कोई तरस नहीं आया, बल्कि इस तरह से लगा कि यार तुम अपना पाकिस्तानी होने का कार्ड प्ले कर रहे हो। तो जो आपकी सिलेक्शन करे होते हैं उसमें 2 पाकिस्तानी होते हैं, 2 US के लोग होते हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट। आई डोंट नो वो पाकिस्तानी थे या अमेरिकन थे। तो जो पाकिस्तानी है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि आप किस तरह से उसको वो कर रहे हो। तो अगर तो आपको लगता है कि आप उसको इतना इफेक्टिवली, अगर आपकी बहुत कोई ऐसी जेन्युइन या कोई बहुत ऐसी आप अपनी हार्श किस्म की स्टोरी जो है वो उसमें उसको लिख रहे हो और वो बाकी इतनी अपीलिंग है, तो गो फॉर इट। लेकिन उसको आप पढ़ पढ़ के बाद में देखें कि भाई वाकई ही क्या मुझे ये लग रही है। अगर आपको लगता है तो गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि यार मतलब मैं लोगों की तरह जो है वो कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, विमेन कार्ड प्ले या
माइनॉरिटी कार्ड प्ले, इस तरह कोई कार्ड प्ले करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको खुद को तो पता होता है ना। तो जस्ट डोंट डू दैट इफ यू आर प्लेइंग कार्ड। लेकिन अगर आपका जेन्युइन कोई ऐसी चीज है तो आप उसको इतनी अपीलिंग वर्ड्स में लिखें कि अगला बंदा उसको कंसिडर करे। Mr. Ahmed Ali wants to ask any question. Skip tell. Yes, Ahmed Ali, I have unmuted you. Yes, Ahmed Ali. Yes. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, दरअसल मेरी क्यूरी क्लियर नहीं हुई, शायद मैं अपना सवाल सही से कन्वे नहीं कर सका। मैं ये पूछना चाह रहा था कि रिसेंटली मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, मेरी थर्ड सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आई, और थर्ड सेमेस्टर में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ। बाय चांस अगर मेरी सिलेक्शन हो भी जाती है तो जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हूँ, तो क्या वो इसको इम्पेक्ट करेगा? क्योंकि एप्लीकेशन के बाद मे भी वो ट्रांसक्रिप्ट मांग सकते हैं, तो अगर ट्रांसक्रिप्ट में सबमिट कर दूंगा तो क्या ये इम्पेक्ट करेगा? क्या सिलेक्शन होने के बाद वो बोल सकते हैं कि भाई आप घर जाओ, हमें नहीं चाहिए आप जैसे? अहमद अली, इट्स नॉट लाइक दैट। और अपने बारे में इतने हार्श वर्ड, आई डोंट नो व्हाई आर यू यूजिंग। यू आर स्टिल एलिजिबल, यू आर स्टिल इनफ कैपेबल टू गो एंड स्टडी इन द यूएस। अगर आपने कोई सब्जेक्ट एक फेल कर लिया तो इट्स completely फाइन, इट्स जस्ट अ ह्यूमन थिंग। So just don't underestimate yourself just because you have failed one subject in the university. It's fine, it's completely fine. आप अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन में इस तरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट फेल कर लिया हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अब अप्लाई कर दें। बाकी अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी इफेक्टिव हुई, उनको लगा कि भाई वो आपके एक सब्जेक्ट के बेस पे आपको ना छोड़े, तो वो आपको जरूर करेंगे। और वो आपकी इस बेस के आपने एक सब्जेक्ट फेल कर लिया था ऐसा कि आपको रिजेक्ट कर दें, इट्स नॉट गोना लाइक दैट। अगर आपकी बाकी एप्लीकेशन इतनी इफेक्टिव है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। Yes, आई एम Divan सॉरी Kumar. अगर मैं आपका पहले। Divan Kumar wants to ask यस। any question. Yes, I have unmuted you. Faisal Latif. मैम, मैंने पहले आपका ना क्वेश्चन का आंसर नहीं सुना था, कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी वाईफाई हमारी तो। अब- और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि बैकग्राउंड का भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के किसी के स्टूडेंट्स का फादर का क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या नहीं, किसी स्टूडेंट का फादर या मदर, तो वही क्वेश्चन प्लीज आप अगेन उसका आंसर बता देंगे। Ma'am, we will be uploading the First- session on YouTube, so I think we have further more questions. फायजा, आप वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत काफी डिटेल में जो है ना आपको आंसर किया था। क्योंकि काफी यहाँ पे लोग हैं तो काफी और भी क्वेश्चंस हैं, तो अगेन एंड अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद ये है कि मुझे एक क्वेश्चन किसी ने पूछे, कैन यू प्लीज रिव्यू। तो मैंने अगेन अपना ईमेल भेज दिया हुआ है, आप मेरा ईमेल ले लें, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी एसओपी, आई रिव्यू फॉर श्योर। यू ग्रेड अब प्रोग्राम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। यू ग्रेड जो है वो पिछले आई थिंक सो 20 साल से चल रहा है। 2008 से, नॉट 20 लेकिन 18 साल से चल रहा है। तो लेकिन ये थोड़े से कुछ अप्स एंड डाउन ये आए हैं कि पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होते थे, स्टाइपेंड ज्यादा होता था, लाइक ज्यादा नहीं होता था, लेकिन पहले जितना था अब भी उतना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2018 में वो आपको $3000 दे रहे थे तो अभी भी आपको $3000 दे रहे हैं, नॉट $3000, इट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लेकिन वो उतना ही है, स्टाइपेंड उतना ही है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पहले 200 होते थे, अब 100 पे आ गए हैं। हो सकता है इससे थोड़े कम हो जाएं, लेकिन यू ग्रेड बंद नहीं होगा, आप दिल मत छोड़े। मैम विच डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे एक लिस्ट दी होती है, यू कैन सी शोएब के कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। Yes, Fazila, I have मीडियम unmuted टू you. कॉन्टेक्ट यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग जस्ट लाइक सिलेक्ट हो जाते हैं, आफ्टर दैट इंटरव्यू हर चीज हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारा वीजा वगैरह होता है, लाइक उसके जो मतलब अखराजात वगैरह होते हैं, तो क्या वो यूएसए की तरफ से होते हैं? फजीला, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि आपको यूएसए दे या आप खुद से लगा लें। अच्छा ओके, वो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यूएस एम्बेसी ही कर रही होती है। इवन जो आपका किराया लग रहा होता है वीजा इंटरव्यू के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, वो आपको किराया तक देते हैं।
इट्स ऑल स्पॉन्सर्ड, आपके वीजा एप्लीकेशन ईच एंड एवरीथिंग वो सब स्पॉन्सर्ड होती है। उसके अलावा वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, आई जस्ट फॉरगॉट, वो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाह रही थी, बट ये सारा स्पॉन्सर्ड होता है। यू जस्ट इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है फॉर एनी रीज़न, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम या इस तरह से, तो वो उसको दोबारा से भी वो हेल्प करते हैं कि वो दोबारा से अप्लाई कर ले विद इन डेट्स अनटिल अनलेस वो कुछ रिजेक्शन की भी डिफरेंट होता है कि कुछ रिजेक्शन ऐसी होती है जिसमें वो आपको बोलते हैं कि आपका परमानेंटली रिजेक्टेड है, तो वो आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। कुछ में ये होता है कि अगर वो कहते हैं कि अगर आप ये वाली चीज़ें अपनी ठीक कर लें इस तरह से कोई डिटेल्स में या वट एवर, तो हम आपको दोबारा वो कर देंगे, तो उसमें भी अगर आप दोबारा कर रहे हो तो इवन दे स्पॉन्सर यू फॉर दैट। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके, उसके बाद अच्छा if मैम, you have- आई हैव टू मोर क्वेश्चंस। जी अहमद अली। अच्छा, तो फर्स्ट वन इज देट कि जो एसओपी है उसमें हम जो अपने इंटरेस्ट और दूसरी जो पर्सनैलिटी की जो खूबियां हैं वो लिखते हैं, तो क्या उनके रिलेटेड सर्टिफिकेशंस अपलोड करना एक प्लस पॉइंट रहेगा या नहीं करने चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और सेकंड वन दूसरा है कि जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उसमें जब वो हमसे हमारे पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, तो क्या वहाँ पे जो हमारी हॉबी है, लाइक किसी की हॉबी है भाई गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, या दूसरी जो हॉबीज है, क्या ये हाईलाइट करना एक प्लस पॉइंट रहेगा? ये दो क्वेश्चंस थे बस। ओके, अहमद अली, आई कैन नॉट से कि ये प्लस पॉइंट है या फिर ये माइनस पॉइंट है। आई जस्ट वुड रिकमेंड यू टू बी योर सेल्फ। अगर आपकी हॉबी है गार्डनिंग तो गो फॉर इट, अगर आपकी हॉबी सोना भी है ना तो गो फॉर इट। टू बी, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत फैंसी वोकैबलरी या फैंसी वर्ड या बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखोगे जो कि आप नहीं हो, तो इट्स नॉट गोना हेल्प। अगर आप बहुत लेम सी चीजें भी, अगर आपको लगता है यार इट्स जस्ट मी, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, मुझे ऐसे ही रहना चाहिए या मुझे अपने बारे में एटलीस्ट सच बोलना चाहिए, तो आप उसको उस तरह से लिखो। आप अपने बारे में जितना ट्रू होके, जितना ट्रू सेल्फ होके लिखोगे वो उतना ज्यादा इफेक्टिव है। और जहां तक है आपका सर्टिफिकेट्स वाला, तो डू अटैच योर सर्टिफिकेट। मेरे पास 16 सर्टिफिकेट्स थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक एक दो दो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बट अगेन दे गॉट सिलेक्टेड और वो जाते हैं यूएस। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो अटैच करें, उसको बताएं कि भाई आप वो प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि आप एक एविडेंस भी अटैच कर रहे हो कि भाई अगर मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है तो हेयर इज द एविडेंस। लेकिन अगर नहीं भी है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप फिर भी बताएं कि भाई मैं ऐसा हूँ। ये उसके बाद मैम अगर सर्टिफिकेशन या नहीं है तो हम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वर्ड्स में नाम मेंशन ना हो तो ऑफ कोर्स, अगर नाम मेंशन नहीं है लेकिन वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो डू अपलोड द। जी हसनैन, मैंने अपना ईमेल दे दिया है, आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना आपको इंस्टा भी सेंड कर देती हूँ, आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज माय इंस्टा, और मैंने अपना ईमेल भी आपको दे दिया हुआ है। हमारे पास ईमेल अगर हमारा स्कोर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा है और सेकेंड के दौरान अप्लाई कर दें, अगेन इन योर सेकेंड सेमेस्टर यू आर नॉट एलिजिबल, आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में होना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं, एट दैट टाइम यू विल बी इन द फोर्थ सेमेस्टर, मीन वाइल यू कैन वर्क ऑन योर प्रोफाइल। जी अगर आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स नहीं है तो मैम आप वो शील्ड्स और अपने वर्ड्स अटैच कर दें। यस साद, आई मैम अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो लेकिन ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई हो तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? थिंक go to your department, go to your HOD, talk to your director academics, every single person who is connected to that academic departments, उनकी मिन्नतें करें, तरले करें, लड़ाई करें, एप्लीकेशन दें, कुछ भी करें, गेट योर रिजल्ट। आप अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो यू कैन नॉट, यू कैन अप्लाई, स्टिल यू कैन अप्लाई कि आप वहां पे लिख दें कि भाई नहीं है मेरे पास ये चीज, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। आप अपना रिजल्ट लाएं, उनसे बात करें कि भाई हमें दे रिजल्ट, जैसे मर्जी दे, कोई भी किसी किस्म का भी कोई ऐसा प्रूफ जिसमें पता तो चले ना कि आपके वाकई इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और आपका ये रिजल्ट है, तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए। क्योंकि वहां पे 60,000 50,000 एप्लीकेंट्स होते हैं, तो 50 60,000 में वो एक ऐसे स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करेंगे जिसके पास एक एविडेंस नहीं है, जबकि उनके पास इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं। तो मेक इट इफेक्टिव एज मच एज यू कैन। तो आप मिनते पाँव पड़ जाए उनके, कहीं भाई रिजल्ट दे हमें। हाँ तो क्या, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हम कैसे अप्लाई करें? ये इफेक्टिव थिंग्स अबाउट एसओपी मैंने काफ़ी बता दी हैं, यही कि उसको रेलिवेंट रखें, स्पेसिफिक रखें, बी योर सेल्फ। लेकिन इस पे काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं अलुमनाई की, आप वो भी जाके मजीद देख सकते हैं। वो जस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना आप उनको फॉलो करें और वर्ड लिमिट का ख्याल रखें।
जी, अगर आपके पास शीट्स हैं तो पिक्चर्स अपलोड कर दें इस सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर आप अब्रॉड में पढ़ते हो मैम, सो एम आई एलिजिबल? आई डोंट नो इफ यू आर और नॉट। आप बस ये है कि जाके उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। क्या सजेस्ट करेंगे डुओलिंगो? अच्छा, ओ सॉरी, आई आई कुडंट टेल अबाउट वन थिंग। टेस्ट जो है वो डुओलिंगो आईएलटीएस ऐसा कोई भी उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। यू जस्ट फिल एप्लीकेशन। अगर आप फाइनल पार्टिसिपेंट्स बन जाते हो तो अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, आप फाइनल पार्टिसिपेंट्स हो उनके, प्रिंसिपल कैंडिडेट या ऑल्टरनेट कैंडिडेट जो भी हो, तो फिर आप टोफल देते हो, लेकिन वो टोफल उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो हाँ, फिर आपने टोफल जरूर देना होता है आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बट बिफोर दैट यू डोंट नीड एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अप्लाइंग फॉर दिस ये तो आपको पता है कि आप क्यों क्या बताएं उनको कि आप क्यों अप्लाई करें, बिकॉज आई आई डोंट नो योर वाई, इट्स ओनली यू हु नो कि भाई मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा थर्ड सेमेस्टर में 3.2 है, तो जी ऑफ श्योर फिर भी आप अप्लाई करें। 3.2 इज गुड सीजीपीए एज लेस नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। ऐसा ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास लेस एकेडमिक एक्टिविटीज हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे बट स्टिल दे गॉट सिलेक्टेड। आप बस अप्लाई करें और छोड़ दें अल्लाह पे। I think I have answered all the questions. If student started third semester, yes, you are eligible, दीवान। वो कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट के बारे में भी काशिफ आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। सब्जेक्ट का ये होता है कि जो आप अपना मेजर पढ़ रहे हो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसके अलावा भी अगर वहाँ पे कोई सब्जेक्ट अपने मेजर के अलावा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस लेकिन वहाँ पे आप आईआर पढ़ना चाहते हो, इवन इफ यू आर स्टडिंग एनी एनी सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे डिफरेंट पढ़ना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बट यू विल हैव टू जस्टिफाई, यू विल हैव टू डिफेंड कि भाई मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहता हूँ और किस तरह से मुझे हेल्पफुल होगा। इट्स नॉट सिंपल आप बस आपने उसको चूज कर लिया हुआ है। आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि भाई मैं एलिजिबल हूँ कि मैं वो दूसरा सब्जेक्ट वहां पे जाके पढूं। What is the difference between academic objectives and goals? It's same thing. Ma'am, can we apply now? Of course, आप 20 डेज की बात कर रहे हो, मैंने लास्ट वाले 3 to 4 डेज में एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। तो यू हैव 20 डेज, इट इज मोर देन इनफ। व्हाट अबाउट पासपोर्ट? पासपोर्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन के बाद वो आपसे मांगते हैं, तो तब आपके वो टाइम भी देते हैं आपको 10-15 दिन का, आप उसमें बनवा सकते हो। नहीं, व्हाट अबाउट बस आपके साथ कितने कैंडिडेट्स गए थे? हमारे बैच में 110 कैंडिडेट्स थे, जिसमें फॉल सेमेस्टर में 54 गए थे एंड रिमेनिंग स्प्रिंग सेमेस्टर में गए थे। How many programs they offer? They offer plenty of programs. I have no idea about exact number. What is the last date? Okay, what about the passport, ma'am? ज्यादा देखिए, गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं लेकिन लड़के भी सिलेक्ट होते हैं। जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट कि ओ मैं तो लड़का हूं तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। लड़के भी सिलेक्ट होते हैं, तो आप ज्यादा एफर्ट करें। आप उन लड़कों को देखिए, उन लड़कों की प्रोफाइल्स आके देख लें, या अलुमनाई की जो स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें आप लड़कों का देख लें कि भाई किस तरह के लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो कितने सेमेस्टर्स हम पढ़ते हैं? थैंक यू सो मच एडमन फॉर रिप्लाइंग सो मेनी क्वेश्चन। आई एम स्टडिंग सिविल इंजीनियरिंग, देन व्हाट सब्जेक्ट? सिलेक्शन किस बेस पे होती है, इंटरव्यू और टेस्ट? आपकी एप्लीकेशन की बेस पे आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो और इंटरव्यू के बेस पे आप फाइनल सेलेक्ट होते हो। कंप्यूटर साइंस वाले भी होते हैं। प्लीज शेयर योर एसओपी जस्ट फॉर रेफरेंस। आई एम सॉरी मोहम्मद अली, आई कैन नॉट शेयर माई एसओपी बट आई कैन लिस्ट ऑफ यू ऑफ थिंग्स जो मैंने अपनी एसओपी में लिखी थी। मैंने बताया था अपने बारे में कि क्या एक्टिविटीज में करती हूँ या किस तरह की एक्टिविटीज का मैं पार्ट रही हूँ। मेरा इंग्लिश मेजर है तो मैंने बताया था कि मैंने इंग्लिश मेजर क्यों रखा हुआ है। इंग्लिश के रिलेटेड मेरे जो फ्यूचर गोल्स थे मैंने वो बताए थे, और किस तरह से मैं अपनी डिग्री को इफेक्टिव बनाने की कौन कौन सी एक्टिविटीज करी मैंने वो बताया था। यूग्रेड में इंग्लिश पढ़ने का मुझे क्या फायदा होगा, यूग्रेड से वापस आके मैं किस तरह से अपनी लर्निंग्स को इनकलकेट करूंगी। पासपोर्ट का आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। कितने सेमेस्टर्स पढ़ सकते हैं? 1 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ाते हैं वहाँ मैडम? वहाँ पे आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो आपको वही पढ़ाएंगे। मेजर वही होता है, लेकिन यू आर सपोज टू स्टडी 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें एक जो है वो आपके स्किल्स के रिलेटेड होना चाहिए, एक अमेरिकन गवर्नमेंट हिस्ट्री एनीथिंग रिलेटेड टू अमेरिका होना चाहिए, और बाकी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप 2 या 3 आप अपनी उसके रिलेटेड पढ़ते हो। डिग्री Ma'am, जी। I have a question. I want to know your personal experience. Like, what was your motivation for applying this program, and what was your experience there in the US? काफी मुश्किल
क्वेश्चन है और इसका आंसर करने में मुझे काफी वो करना पड़ेगा क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स। जब मैंने अप्लाई कर रही थी तो आई वॉज नॉट दैट मच होपफुल कि मेरा हो जाएगा। आई आई जस्ट अप्लाइड, मैंने अपनी फुल एफर्ट के साथ अप्लाई किया था कि अपनी जितना जो ट्रू सेल्फ थी जितनी भी थी, तो मुझे लगा था मतलब इसमें तो बड़े बड़े लोग सिलेक्ट होते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरह के स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो है ना वो कंसाइज रहना होता है और थोड़ा रेलिवेंट रहना होता है अपनी एप्लीकेशन के बारे में, और हर चीज़ मेंशन करनी होती है जो वो आपसे पूछते हैं। हाँ, मेरी जो थोड़ा सी मैं कहूँ सीरियसनेस स्टार्ट हुई थी तो वो तब हुई थी जब मुझे इंटरव्यू की ईमेल आई थी। मेरी आंखें खुल गई थी, ओ माय, कि मतलब अच्छा मेरी तो इंटरव्यू की तक मैं पहुंच गई हूँ तो आगे मुझे एफर्ट करनी है। तो मैंने जो रियल एफर्ट स्टार्ट की थी वो मैंने इंटरव्यू की सिलेक्शन के बाद की थी। इंटरव्यू के बाद हमारे पास कोई 15 दिन थे जिसमें मैंने अच्छी खासी एफर्ट की थी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। उसके बाद मोटिवेशन तो बस यही थी कि भाई यूएस का एक ट्रिप हो जाएगा। एज फार एज कोई खास बहुत बड़ी तो वो नहीं थी कि आई थिंक आई कैंट आंसर इन वर्ड्स के क्या मोटिवेशन थी। बस यही था कि दिल था कि जाना है और स्टफ लाइक दैट। हाँ, उसके बाद ये था कि इट वाज क्वाइट हेक्टिक। पहले टोफल और फिर आपके मेडिकल टेस्ट और बहुत काफी ज्यादा ख्वारी थी। अम, लेकिन वो ये होता है क्योंकि आप फाइनल पार्टिसिपेंट्स बन चुके होते हो तो वो जितनी भी ख्वारी होती है ना आप बड़ी खुशी से बर्दाश्त करे होते हो। उसमें रिकमेंडेशन लेटर्स और पता नहीं क्या कुछ आपसे वो मांग रहे होते हैं, लेकिन आप खुशी से वो सारी ख्वारी बर्दाश्त करे होते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आप फाइनल पार्टिसिपेंट्स हैं और आप जाओगे ही। तो वो ख्वारी आप बहुत खुशी से बर्दाश्त कर लेते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस इट वाज वंडरफुल। काफी प्रॉब्लम्स भी आए क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हो तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होते हैं आपको खाने में, लोगों के साथ एडजस्ट करने में, एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ। तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन आप इंजॉय करते हो क्योंकि आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, आप नए लोगों से मिलते हो, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पैसे नहीं लग रहे होते उसमें। और आप बहुत कुछ सीखने को आपको ऐसी चीजें मिलती हैं। जब मैं गई थी तो मेरा बहुत लेस इंटरेक्शन थी मेरी आईटी के साथ और आईटी रिलेटेड फील्ड्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इतना ज्यादा मैनुअल सिस्टम होता है, इतना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। लेकिन वहां पे था तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी था स्टार्ट में एडजस्ट करना, लेकिन बाद में वही चीजें आप जब उसके यूज टू हो जाते हो तो आपको अच्छी लगती हैं। कुछ अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मुझे खाने का प्रॉब्लम था क्योंकि हलाल फूड का मसला था। उसके अलावा स्टार्ट में ऑफ कोर्स वो कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ एडजस्ट होने में, आप जिन स्टूडेंट्स के साथ पढ़े रहे होते हैं वो बचपन से उस सिस्टम के यूज टू होते हैं, आप बिल्कुल न्यू होते हो लेकिन आपने इनको कम्पीट करना होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू जस्ट ग्रो। उसके अलावा उसके अलावा तो हाँ, क्लाइमेट के थोड़े से मुझे इश्यूज हुए थे बट वो आपके काउंटर हो जाते हैं। और एक मेरा ट्रेजिक एक्सपीरियंस था, दैट वाज एन एक्सीडेंट जो मेरा हो गया था। उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बट अगेन ऑल ऑफ दोज बैड एक्सपीरियंस डजंट काउंट, दे डोंट काउंट एट ऑल, क्योंकि आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि यू डोंट केयर अबाउट दोज बैड एक्सपीरियंसेस। तो या दैट्स ऑल। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बात करने लगूँ तो एक और सेशन हो जाएगा, विच आई रियली डोंट वांट। There is a question from Kamran Ali. He wants to ask a question. Yes, Kamran, I have unmuted you. Kamran? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे थोड़ा वीज़ा का इशू आ रहा है। मैंने अप्लाई किया हुआ था यूएस की विजिट वीज़ा के लिए। हम्म। तो वो जब आपके अगर रिजेक्ट करते हैं तो दे टेल यू व्हाई हैव दे रिजेक्टेड यू, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो। नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ, डेट्स का क्लेश आ रहा है। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, 2025 की जुलाई में इंटरव्यू आ रहा है मैम। ओके, तो अच्छा ये ये डेट होता है कि जी जी, अच्छा आई एम नॉट एक्सपर्ट इन केस ऑफ वीजाज बट देर इज वन थिंग। जब आप यूएससीएफपी के थ्रू अप्लाई आइडिया करते देते हो, जी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप किसी जैसे यूएससीएफपी है, इट इज ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, ठीक है। तो वो एक यूएस का ही डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमने अप्लाई किया था। आईरेक्स ने हमें सिलेक्ट किया हुआ था जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो उसमें डिफरेंट केस होता है, आपकी ऑलरेडी एक जो प्रोफाइल है, एक एक्सेप्टेड प्रोफाइल उन तक होती है। तो जो यू ग्रेड इस तरह के स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स होते हैं इनको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस वो मिल जाती है और विद इन डेज इनके जो है वो इंटरव्यू डेट आ जाती है। बट अगर आपने एज ए इंडिविजुअल अप्लाई किया होता है तो आपकी वो प्रोफाइल पे बहुत टाइम लगाते हैं आपकी प्रोफाइल सर्च करने में, आइदर यू आर एलिजिबल। और वैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि विजिट वीजा पे जाते हैं बट दे डोंट प्लान टू कम बैक। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं और वैसे भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपो पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया है
post COVID there were so many political instability still is in Pakistan, और पाकिस्तान का जिस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं, तो there are so many things जिनकी वजह से इट्स नॉट अबाउट यूएसए, किसी भी कंट्री के जो वीजा हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़े से मुश्किल हो गए हैं. तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई थिंक आई कैन नॉट गिव यू एनी रिकमेंडेशन. यू कैन जस्ट वेट एंड प्रे फॉर दिस. I think, ma'am, there is repetition of the questions in the chat box. Yes, I can see. There are two questions. रेफरेंस लेटर का ये है कि आप वो फाइनल पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है, वो एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं चाहिए होता. प्लीज प्लीज आप लोग जो है ना काइंडली एक दफा एप्लीकेशन फॉर्म जाके जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, इंटरव्यू एक्सपीरियंस. इंटरव्यू में यही होता है कि आपने जो लिखा है ना अपनी एप्लीकेशन में, आपने वही डिफेंड करना है. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन कि बी योर सेल्फ, और कुछ भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश ना करें, या किसी किस्म का भी कोई कार्ड प्ले ना करें, क्योंकि आप इंटरव्यू में वही चीज़ें डिफेंड कर रहे होते हो. तो अगर आपने वो झूठ लिखी है या आपने बढ़ा चढ़ा के लिखी है तो आप डिफेंड नहीं कर सकोगे. तो क्या फ़ायदा आपकी इतनी मेहनत का अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सके. तो जस्ट बी योर सेल्फ, इस तरह की ट्रू सेल्फ के अगर आप उससे उसके बारे में कोई पूछे तो आप फ्लुएंटली उसके बारे में बात कर सको. तो आई थिंक, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट लास्टेड फॉर 18 मिनट्स. दे आस्क्ड मी 8 डिफरेंट क्वेश्चंस, और वो सारे काउंटर क्वेश्चंस थे, लाइक एक क्वेश्चन से दूसरा, एक क्वेश्चन से दूसरा, जिसमें उन्होंने मेरी एसओपी और मेरी एप्लीकेशन को ही कंगाला था कि अच्छा जी आपने ये एक्टिविटीज की है, या आप ये करते हो, वो करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, वहां पे क्या करोगे, स्टफ लाइक दैट. जो मैंने लिखा था बस उन्होंने मुझसे वही पूछा था. अच्छा, फेस टू फेस हमारी दफा ऑनलाइन था, लेकिन वो कोविड इरा के बाद उन्होंने ऑनलाइन कर दिया. वो था 2023 तक ऑनलाइन था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अब वो फिजिकल इंटरव्यूज लेते हैं. इट्स आई थिंक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप ऑनलाइन दे रहे हो या फिजिकल दे रहे हो. पासपोर्ट आपने आफ्टर सिलेक्शन ही देना होता है. अपना ईमेल सेंड कर दे, मैंने कर दिया हुआ है क्या किस. Okay, I think I have answered all those questions, and again it's just repetition. और अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप YouTube पे जो या कहीं पे भी अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग वगैरह, तो करण आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन सब के साथ शेयर कर दें. Yes, sir. Yeah, Yes, ma'am. that's We will share this. And thank you so much for being here and being part of this wonderful session, guiding participants about this program and entertaining their queries. And thank you so much. It's complete my it's all my pleasure. Thank you so much. Thank you so much everyone for joining. And I wish you very very best of luck. और किसी भी बेस पे जो है वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, डिसअपॉइंट ना हो बिफोर अप्लाइंग. बाद में जो होगा देखा जाएगा, बट जस्ट डू इट. तो या थैंक Okay, यू. so we are ending our session here. Goodbye, everybody. ओके, अल्लाह हाफिज.